या हर्षल सावंत, तुम्हारा फोटो अपना खुद का लगाओ, otherwise don't keep photo on the picture, only name. हर्षल सावंत. गुड मॉर्निंग सर. या हर्षल सावंत, वो अपना फोटो निकालो, पिक्चर निकालो और अपना नाम रखो. जैकब रॉड्रिक्स. जैकब रॉड्रिक्स, अपना रोल नंबर और नाम रखो. फोटो रखना है तो वीडियो रखो, अदरवाइज अपना फोटो रखो. ओके. नेम भी आपका रोल नंबर आगे होना चाहिए. H354 दिखाई दे रहा है. Okay, so let's continue. Good morning all of you. अभी तक चालू, अभी भी ज्वाइन हो रहे बहुत जन. Good morning, sir. Yes, good morning. So now give me attendance one by one. Okay, I'm sharing your screen. First of all, give me attendance. तब तक सब लोग आ जाएंगे. Roll number 1 to 10. 1 to 10. 1. 1. ये आपके सामने स्क्रीन है, आपका नाम है, बराबर है. 1 में आपका नाम है. हेलो सर. हाँ बोलो. सर मेरा नाम नहीं है वहाँ पे, मेरा रोल नंबर 1 है मेरा. नाम बोलो. सुशांत बांबाड़े. अटेंडेंस का अलग से रोल नंबर आया है क्या आपको? हेलो, ये सर हाँ बोलो सर. आपको अटेंडेंस शीट दिया है क्या सर ने? रोल नंबर आपको दिया नहीं है? सर. हाँ तो फिर आप नहीं सर. आप नाम मेरे को लगा का भी नाम रहेगा ना अटेंडेंस प्रेजेंट करते हुए. आचार्य. ओके. 5 मिनट में अटेंडेंस खत्म होना चाहिए. ओके.
नाम खाली बताते जाओ, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। हमारी क्लास का नहीं है। ये तुम्हारे क्लास का नहीं है? नहीं। SY BCom, अच्छा TY BCom की जगह और SY BCom। ठीक है, wait। ये आपका अटेंडेंस है। हेलो, यस स्टूडेंट, राइट? हाँ सर, ये हमारे क्लास का ओके, है। तो लास्ट ईयर यस सर। 1 आगे 5 ना, आगे 11 to 20 Sir, 12. 11 12 Number 7. 7 Sir, 12. 11 12 and 7 ना, Yeah. सर 9. 9। चलो आगे बोलते जाओ। So 23, 20 21, 21 आगे बोलते जाओ। सर 15, 15। आप लोग बोलते जाओ फटाफट, अटेंडेंस अपना रोल नंबर बोलते जाओ। 17, 17 रोल नंबर है क्या? 16 है कि 17 है? 17, हाँ, देन नेक्स्ट 61। हाँ आगे बोलो फटाफट। 29, 60 38 sir, 38, सर 59. 29 Sir, 55. 36. एक एक जन बोलो। 43, 29 38 36. 36 43, 40 42. 41, 43 45, 42. 43 45 41, 59. 42. 52. आगे बोलो। 58. 52. 55. सर हाँ हेलो 52. हेलो 49, 59. हेलो सर 55. 58. 68 sir, सर 58. 58 आगे 70. 31, 31 31 73 सर 70. 70 66. 70 ना, यस सर 70 66. 74 है, 73 66. 75, sir 80, 80 83, 83 आगे हो गया। 59. 94 हाँ कितना? 54. 94 हो गया। 54 59. 59 sir 49, 59 49 हेलो सर 55. 55 55 हो गया है ना? कितनी बार करेगा रेजा को? 75, 75 चलो हो गया। और किसका बाकी है? अभी कोई ज्वाइन हुआ है उसका बाकी है अटेंडेंस? कौन? रोल नंबर बताओ अपना लास्ट ईयर का, जो भी अभी ज्वाइन हुआ है रोल नंबर बताओ। पता है क्या रोल नंबर? नहीं तो नाम बता। चलो ओके, नाउ आई स्टॉप द अटेंडेंस। ये मैं बाद में अटेंडेंस का ये देख लेता हूँ। तो देखो अभी हो रहे 31
31 already है ना रे. चलो now I just continue. Good morning all of you. Good morning, sir. Okay, welcome. Morning, sir. Sahib Morning, sir. Ambedkar Mahavidyalaya Vasai West, TYBCom 6th sem. Subject is computer system and application. Topic is going on module 2, introduction to MySQL, presented by assistant professor Bipin P. YB. So let's continue now. Some of the session we have to do the MySQL command practically. So you just keep your notebook with you. We'll start that SQL and we are continue with command. Example, exercise. We are doing the exercise related last time command. Whatever we have done, MySQL. So you just keep the what ready notebook. Answer of the command. Do you have to write and question of the command that is given on the board. See that now. It is given. You can print. You can use the print screen. If you want, you can use the print screen and copy it in your Microsoft Word. Yeah, it is in your book. If you have the DISA book, so you can see the back side. There is an exercise given. The first exercise they are given. So that is write MySQL command in the following session. They are just like that command. They will ask you in your what theory paper. 8 marks, 7 marks, 8 marks, 7 marks. Is it clear? So 30 marks query, 30 marks query. You can say the query, SQL query, yeah, SQL command, write the SQL command. So that is the question they ask. So that's why we are continuing the write the answer. So मैं practically दिखाने वाला. So first of all, how to start a session in MySQL. So you can go on window, then all program. After that MySQL. And after that MySQL command line client. Then you write the password, whatever you said, admin, and then press enter key. Then we can see the command. Got it? How to start MySQL? Clear? Yes, student. Sir, एक बार और repeat करो. Hello. Hello, sir. Repeat it one more time. Yeah. Okay. Then click on start. All program. Okay, you have to concentrate very well. Don't look at here and there. Start all program, MySQL, MySQL command line client. And then your password, whatever you are set when you are installed, so press admin, and then press enter. By default, username is a root. So we can get the command. This way we can start the MySQL. You have to install your MySQL first. You have to download the software from the Google and you have to install. Okay. Is it clear? MySQL Server 5.1. That is the version it is given. MySQL Server 5.1. And that exe file we are executing and command prompt is there. This is a command prompt where you type the command. MySQL command. So it is command prompt. Okay. It is not a Windows base. It is a DOS base. Clear? Yeah. First command. See that now. You have to write the command. Write down the command also. Create database called as a data and then create database called as a bata. So first command, create database. So I'm writing the command. You note down in your book. Keep your book ready. Write in your book all commands. I'm giving the questions on the board. See that now. And then you write the answer. Create database data. Okay, that is the command. Create database is command. Data is the name they are given. Create database data, and then semicolon, and then press enter. Each and every command close with the semicolon. So I am writing that command. If you are making spelling mistake, error, you will get the error, and you have to continue type the command on another command on the command prompt, and then press enter key. If it is continue query okay, press enter key. After the semicolon, we are pressing enter key. We are getting the answer query okay. That means command executed properly. Right. Your type command is a right and it is executed. We can get the output. Is it clear? Okay. Another database you have to create. चलो command बताओ अभी मुझे. Create. क्या बोला है उन्होंने? Database bottom. So create database bottom. Okay, and then semicolon.
After the Semicolon, command फिर is enter. completed, you have to write the semicolon and then press enter key. So we are getting the query okay. That means 2 database are created. Okay, clear? Next. Yes, Next sir. command, third command. See that now, third one. क्या लिखा है उन्होंने? Display name of all the available databases. What is the command? Show. What is the command? Show database. Show Show databases. database. Databases. या जो भी बात कर रहा है वो रॉन्ग कमांड मत बोलो, करेक्ट कमांड बोलो अगर मालूम है तो. शो डेटाबेसेस एंड देन सेमीकोलन, एस लगाना है, डेटाबेसेस सेमीकोलन एंड देन एंटर. So we are getting the list of the database. See that now, our Tata and Bata, it is also already there. Tata and got it? Clear? So show databases is command to display the name of the all available databases. Already existing database if you want to list, so you can write the command show databases. Now next, display name of all the databases where database name क्या दिया है? डिस्प्ले नेम ऑफ द ऑल डेटाबेस वेयर डेटाबेस नेम स्टार्टिंग विद अ टी. दे आर गिवन स्टार्टिंग विद अ टी. अभी यहाँ पे पैटर्न, हमारा थोड़ा सा पैटर्न मैचिंग का कमांड है. जो टी नेम से स्टार्ट हो रहा है उनका डेटाबेस दिखाने बोला हुआ. क्या बोला है? टी नेम से स्टार्ट होने वाले डेटाबेस को दिखाना है. सो हाउ यू राइट द कमांड? सी दैट नाउ कमांड पैटर्न मैचिंग. ये पैटर्न मैचिंग दिखाया हुआ है उन्होंने. डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल द डेटाबेस वेयर डेटाबेस नेम इन स्टार्टिंग विद अ टी. तो कमांड कैसे लिखना है देखो. नाउ राइट द कमांड शो डेटाबेसेस, लाइट गेले, शो डेटाबेसेस. पुन्हा मोबाईल घेऊन ये पटकन लवकर. शो डेटा मोबाईल घेऊन ये कारण इथला पण जाईल. शो डेटाबेसेस देन टी नेम से स्टार्ट होने वाले देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. शो डेटाबेसेस टी सिंगल इन्वर्टेड में टी देन परसेंटेज टी. ओके, देन सेमीकोलन एंड देन आफ्टर दैट क्या लिखा है देखो. शो डेटाबेसेस टी दिखाई दे रहा है सब लोगों को. टी परसेंटेज देन सिंगल इन्वर्टेड, मतलब सिंगल इन्वर्टेड में टेक्स्ट लिखा है दैट इज पैटर्न. टी नाम से स्टार्ट हो रहे, स्टार्टिंग नेम इज टी एंड देन प्रेस एंटर की. वी आर गेटिंग द एरर. क्या आ रहा है फिलहाल? एरर आ रहा है. अभी आपको पैटर्न मैचिंग टी में स्टार्टिंग विद ए स्टार्टिंग विद टी, तो हम लोगों ने लिखा शो डेटाबेसेस टी, लेकिन वो वहां पे लिस्ट नहीं कर रहा है. लिस्ट कर रहा है क्या? नहीं. तो क्या एरर है वो देखते हैं. MySQL सर्वर वर्जन एरर फॉर द राइट सिंटैक्स टू द नियर टी. आपको टी के इधर नियर सिंटैक्स में एरर आ रहा है, तो मैं अभी डबल इन्वर्टेड लिख रहा हूँ. शो डेटाबेसेस लाइक इज अ क्लॉज. क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को? एक क्लॉज लेना पड़ेगा. लाइक. कौन सा क्लॉज लेना पड़ेगा? लाइक. देखो लाइक खाली शो डेटाबेस टी से लिखा तो आपको नहीं मिला, लेकिन उन्होंने क्या बताया? उस नाम की तरह. तो इट इज देयर इज अ क्लॉज, एक कमांड है लाइक टी नेम से स्टार्ट. आप डबल इन्वर्टेड में भी लिख सकते हो, सिंगल इन्वर्टेड में भी लिख सकते हो. देन सेमीकोलन एंड आफ्टर दैट प्रेस एंटर की. क्या बताया उन्होंने? फिलहाल क्या बताया? एम्प्टी सेट. फिलहाल अभी नहीं है लाइक, तो अभी हम लोग टी स्मॉल लेटर में लिखते. ओके, देन प्रेस एंटर की. अभी स्मॉल लेटर में लिखा तो क्या आया? कमांड लिखा है. हेलो स्टूडेंट. Yes, Yes, sir. sir. Yes. या तो आपका टी यहाँ पे देख सकते हो, ज्यादातर आपका डेटा कहाँ पे स्मॉल केस में होता है. तो यहाँ पे टी नाम से चालू होने वाले मैंने टी कैपिटल लिखा तो मुझे एम्प्टी सेट दिखा है. बट शो डेटाबेस लाइक टी स्मॉल लेटर में या टी नाम से चालू होने वाले टी परसेंटेज, तो देयर आर टी नाम से चालू होने 3 दिखाई दे रहे, टाटा, टेस्ट और टीवाईबी को. और एक कमांड, सपोज हम लोग को ओनली टी ए देखना है. टी ए मतलब क्या? टी ए मतलब टी ए से स्टार्ट होने वाली. तो देखो एक ही नाम दिखाई दे रहा है, टाटा. क्लियर. देखो कमांड था हमारा डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल द डेटाबेस वेयर डेटाबेस नेम इज Yes, sir. स्टार्टिंग विद अ टी.
शो डेटाबेस लाइक TA। तो अभी TA हम लोगों ने दिया, अनदर कमांड डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल द डेटा वेयर डेटाबेस नेम स्टार्टिंग विद TA। तो आपको TA नाम से चालू होने वाला रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। गॉट इट? क्लियर? क्लियर? यस सर। या अभी लेकिन आगे और डिफिकल्ट होगा। आगे और डिफिकल्ट क्या है देखो, आगे आपको डिफिकल्ट दिया हुआ है, लिस्ट द डेटाबेस वेयर सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ द डेटाबेस नेम इज T। सेकेंड लास्ट पीछे से, अभी पीछे का नाम चेक कर रहे हैं। तो ना शो डेटाबेस लाइक वही कमांड है, लेकिन पीछे से सेकेंड लास्ट कैरेक्टर। अभी इसको पैटर्न मैचिंग में किस तरह लिया जाता है बता दो आपको। पहले अंडरस्कोर, एक कैरेक्टर मतलब अंडरस्कोर, सेकेंड लास्ट एंडिंग विद, सपोज हम लोग एंडिंग विद A लिख, एंडिंग विद A, तो एंडिंग विद A दो आगे बाटा एंड टाटा, बराबर है? नाउ अगर हम लोग ने TA लिखा, परसेंटेज पहले लिखा है बाद में TA लिखा है, तो भी दो आगे बाटा एंड टाटा, बराबर है? देखो शो डेटाबेसेस परसेंटेज TA, तो भी हम लोग को दो आगे। अभी हम लोग एक ही जगह अंडरस्कोर लिखते, क्या लिखा है हम लोग ने? एक ही जगह अंडरस्कोर, शिफ्ट की से माइनस अंडरस्कोर T। इसका मतलब सेकेंड लास्ट कैरेक्टर T से चालू होने, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर T से, वो भी दो आगे, बराबर है? इज इट क्लियर? सेकेंड लास्ट कैरेक्टर T, जिनका सेकेंड लास्ट कैरेक्टर T है, सब TY लेते, O सेकेंड लास्ट कैरेक्टर O लेते। सेकेंड लास्ट कैरेक्टर O वाला कौन सा आता है देखो, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर TY। गॉट इट? अंडरस्टूड? शो परसेंटेज O, ये अंडरस्कोर एक सिंगल कैरेक्टर हुआ, ये सेकेंड लास्ट कैरेक्टर हुआ, परसेंटेज पहले लिया हुआ, परसेंटेज पहले लिया और बाद में आपने कैरेक्टर डाला तो हुआ एंड ऑफ द कैरेक्टर, और पहले कैरेक्टर डाले बाद में परसेंटेज लिखा तो स्टार्टिंग ऑफ द कैरेक्टर। गॉट इट? पैटर्न मैचिंग समझ में आता है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ओके, अभी सपोज मुझे 4 कैरेक्टर वाला ही नाम देखना है। कितना? 4 कैरेक्टर वाला। सो कमांड हम लोग लिखते हैं शो डेटाबेसेस 1 कैरेक्टर मतलब 1 अंडरस्कोर, सेकेंड कैरेक्टर मतलब सेकेंड अंडरस्कोर, थर्ड कैरेक्टर मतलब थर्ड अंडरस्कोर, फोर्थ मतलब फोर्थ, एंड देन परसेंटेज। क्या बताया मैंने? स्टार्टिंग विथ द 4 कैरेक्टर। कितने आए? सारे आए ना, एक कैरेक्टर का कोई नहीं है, बराबर है? अभी मैं थोड़ा सा कमांड में ट्विस्ट करता, फोर्थ कैरेक्टर हमारा A होना चाहिए। फोर्थ कैरेक्टर A मतलब क्या आया? BATA, बाकी कोई आया है क्या देखो? इज इट क्लियर? यस, पैटर्न मैचिंग समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ सर, हाँ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो शो डेटाबेस लाइक कमांड से हम लोग पैटर्न मैचिंग वाला डेटा लिस्टिंग कर रहे हैं। चलो आगे जाते हैं। लिस्ट द डेटाबेस सेकंड कैरेक्टर, ये हो गया सेकंड लास्ट कैरेक्टर। फिर ओपन अ डेटाबेस कॉल्ड एज अ टाटा। 7 कमांड पे आ गए हम लोग। ओपन अ डेटाबेस कॉल्ड एज अ टाटा और मेक टाटा डेटाबेस एक्टिव। क्या बताएं? डेटाबेस ओपन करना है। कमांड क्या है? यूज टाटा एंड देन सेमीकोलन। कमांड क्या है आपका? यूज टाटा, दैट मीन्स यू हैव टू ओपन द डेटाबेस। मैसेज आया डेटाबेस चेंज। अगर आपको बाटा यूज करना है तो आपको कमांड क्या लिखना पड़ेगा? यूज बाटा। तो आपका ओपन क्या होगा? डेटाबेस बाटा। इज इट क्लियर? डेटाबेस चेंज। तो आपको जो भी डेटाबेस ओपन करना है उसके लिए कमांड है आपका यूज कमांड है और देन डेटाबेस नेम, दैट इज कॉल्ड। देखो 7 कमांड, ओपन डेटाबेस कॉल्ड टाटा और मेक एज अ एक्टिव। नाउ गो टू बाटा डेटाबेस, सेम कमांड यूज बाटा। सेम कमांड आएगा ना, गो टू बाटा डेटाबेस मतलब यूज बाटा। नेक्स्ट डिलीट डेटाबेस, आपको अभी डिलीट करना है। कमांड है ड्रॉप डेटाबेस टाटा। इसका मतलब हम लोग को क्या करना है? डिलीट करना है, डेटाबेस को निकाल देना है। देन नाउ प्रेस एंटर की, सो वी आर गेटिंग क्वेरी ओके, दैट मीन्स डेटाबेस आर डिलीटेड। बराबर है? इज इट क्लियर? अभी हम लोग अगर कमांड लिखते हैं शो डेटाबेस का, शो डेटाबेस, तो हम लोग ने कमांड लिखा शो डेटाबेसेस, तो वहां से टाटा निकल चुका है। इज इट क्लियर? टाटा नहीं है। Yes, sir. तो अगेन Yes, sir. यूज कर रहा हूँ ड्रॉप डेटाबेस। ओके, ड्रॉप डेटाबेस लिख रहा हूँ
ड्रॉप डेटाबेस बाटा, अभी बाटा को भी निकाल रहा हूँ, तो ड्रॉप डेटाबेस बाटा। सो आपको ड्रॉप डेटाबेस बाटा होने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? ड्रॉप डेटाबेस बाटा मतलब डिलीट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, डेटाबेस रिमूव करना है, निकाल देना है। क्वेरी ओके। अभी वापस कमांड लिख रहा हूँ मैं, शो डेटाबेसेस, तो चेक कर रहा हूँ, तो वहां पे डाटा भी नहीं है और बाटा भी नहीं, बराबर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये 10 Yes, sir. प्लीज मेक द प्रिंट स्क्रीन ऑफ दैट कमांड एंड राइट, आपके नोटबुक में लिखो, नोटबुक में ये 10 कमांड जो अपने हुए वो लिखो, बराबर है? मैंने कमांड सिखा दी है। अभी आप लोग लास्ट वन, एंड द सेशन, दैट इज एंड द सेशन के लिए कमांड है क्विट। क्विट मतलब एग्जिट या क्विट, एंटर करोगे कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। तो पहला सर नोटबुक में लिखना है या जर्नल मैंने बुक पहले ही में? बोला था, तुम लोग सुनते नहीं है, नोटबुक हाथ में लेके बैठो और लिखते बैठो। सर फास्ट जा रहा था ना इसके लिए। कुछ पास नहीं जा रहा है, आप लोग का ध्यान इधर उधर हो, इधर मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं, उन लोगों को भी पता चलता है। आपको नोटबुक हाथ में ही रखना है और आपको लिखते जाना है, जैसे कमांड हो जाती है आपको नोट डाउन। इज इट क्लियर? ये लास्ट टाइम भी मैंने सिखाया था कमांड, अभी ये वापस रिपीट कर रहा हूँ। और कितना चाहिए? 2-2 3-3 लेक्चर में एक ही कमांड कर रहा हूँ, बराबर? चलो नाउ नेक्स्ट, अभी ओनली क्रिएटिंग टेबल, क्या बोल रहा हूँ मैं? खाली टेबल बनाने का कमांड। ओके, कोई भी डेटाबेस में बनाओ चलेगा। आई राइट वन कमांड, कोई भी एक TYBCom का डेटाबेस ओपन करता हूँ और उसके अंदर ये टेबल बनाना है। सो सी दैट नाउ, इसको प्रिंट स्क्रीन करके आपके पास रख सकते हो, स्क्रीनशॉट करो, प्रिंट स्क्रीन करो, आपके पास रखो। ये पीछे बुक में भी दिया हुआ एक्सरसाइज। नाउ दे आर व्हाट दे आर आस्किंग, में कैसे रीड करना है वो बता दो। देखो ये ऐसा सवाल आएगा, 8 मार्क्स के लिए 2 टेबल बनाने के लिए आएंगे, या एक 7 मार्क्स के लिए एक टेबल बनाना और क्वेरी लिखने के लिए, उसके रिलेटेड क्वेरी लिखने के लिए आए, तो आपको इस तरह का सवाल पूछा जाता है। सो राइट, व्हाट इज दैट कमांड? राइट अ माइस्क्यूएल स्टेटमेंट, क्रिएट टेबल, हम लोग को टेबल बनाना है। नेम, क्या नाम दिया है टेबल का? ई स्टूडेंट, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट हैविंग द कॉलम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दिया हुआ है उन्होंने, रजिस्ट्रेशन नंबर ST_RN, यूनिक मतलब प्राइमरी की आ गए। ओके, देन इंटीजर मतलब INT आ गए। देन स्टूडेंट नेम कैरेक्टर, S नेम कैरेक्टर, वेरिएबल कितना बोला है? 25 कैरेक्टर का आपको बोला हुआ है, बराबर? एंड नॉट एम्प्टी मतलब नॉट नल। आगे स्टूडेंट एड्रेस ADDR, कैरेक्टर दिया है, फिक्स साइज विड्थ दिया है 35, एड्रेस का साइज कितना दिया है? 35। देन एज विड्थ कितना दिया है? 2, न्यूमेरिक इंटीजर, नॉट नेगेटिव ओनली पॉजिटिव मतलब अनसाइंड। देन स्ट्रीम STRM, डिफॉल्ट वैल्यू, उसके अंदर डिफॉल्ट लिखना है BCom, और वेरिएबल विड्थ है 5, नॉट एम्प्टी मतलब नॉट नल। पीस पेड विड्थ टोटल 9, मतलब उसका पीस पेड का 9 डिजिट, लेकिन उसमें भी डेसिमल दिखाना है, 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मतलब 11, टोटल 11 हो गए, और 11 में 2 डेसिमल। गॉट इट? नेक्स्ट SMS रिपोर्टिंग, SMS को बुलियन टाइप देना है, तो ये टेबल बनाना है। ठीक है, बनाते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट। उसमें सर मीटिंग खत्म हो उसके पहले आप क्या बता सकते हो, आपने जो जर्नल वगैरह लिखने बोला है उसका डिटेल मतलब कैसे लिखना है, क्या है, और सबमिशन वगैरह डेट वगैरह? ऑलरेडी मैंने जो जर्नल दिया है वो आपको लिखना है, ब्लैंक पेज पे आउटपुट और लाइन पेज पे आपको लिखना है। ओके, और जो आउटपुट आपका आने के बाद आपको लिखना है। ओके, मतलब जो भी आप कमांड करोगे एक्सेल में, वो आउटपुट जो आएगा वो आंसर ब्लैंक पेज में लिखना। ठीक है सर 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 सबमिट कर वो दिए करना। हेलो, सबमिशन डेट का भी पूछ रहे हैं। सबमिशन जब तक कॉलेज चालू नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे बोलेंगे सबमिशन? मेरा कॉमन एंड सेंस। सर वो सर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ना कुछ फॉर्मूला का कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ, तो आप क्योंकि लोग हो correct नहीं करो रहा ना, है। अभी आप लोग जब होगा तभी करेक्ट करो। यू आर स्मार्ट देन अस, ओके, डोंट वरी, यू करेक्ट इट। ओके, आंसर नहीं आ रहा था इसके लिए। तो आप लोग करेक्शन करो ना, आपको आता है तो।
नहीं आता ना। नहीं आता है तो सर। नहीं आता है तो नहीं रुको, आता है सर। नहीं आता है तो रुको। मैंने आउटपुट कभी निकालने के लिए बोला है? कभी निकालने बोला है? मालूम नहीं। जब आपका आउटपुट आएगा तब। नहीं आता है तो रुको, जब तक सिखा के हो ना। मेरा सिखा के हो गया क्या? नहीं ना, अभी तो स्टार्ट किया है MySQL। अच्छा, आप सिखाएंगे Okay, उसके okay, बाद sir. लिखने का ना सर? MySQL वगैरह सब कुछ सिखाऊंगा। मैंने आपको लिखने बोला है, मैंने आउटपुट निकालना है। अगर आता है तो ड्रॉ करो, नहीं आता है तो मत ड्रॉ करो, इतना ही बोला है। ओके ओके सर। व्हाट? ओके। आप लोग अपना ओवर स्मार्ट तो की सर रिपोर्ट अगर आउटपुट नहीं लिखा तो भी चलेगा? हाँ बोलो। हेलो, आउटपुट नहीं किया तो भी चलेगा? अभी भी ओवर स्मार्ट। अरे मैंने क्या बताया है, मेरा कंप्लीट टॉपिक होगा MySQL का सिखा के, तभी आप लोग आउटपुट खुद निकालो और ड्रॉ करो। बराबर है? नहीं निकालना ऐसा नहीं बोला है मैंने। हाँ। है समझ में? अच्छा अच्छा। हाँ सर। कंफ्यूज? एक्सेल सिखाया मैंने? एक्सेल सिखाया अभी नहीं। तक? नहीं। तो फिर बहुत जन नहीं। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट करके भेज रहे हैं मुझे, क्या फायदा है? मैंने एक्सेल सिखाया नहीं है। तो आप लोग आउटपुट निकाल के मुझे क्या करना है? जब तक मैं आउटपुट नहीं निकालूंगा, आप लोग दिखाओगे तो भी मैं बताऊंगा मुझे पता नहीं है, अभी वो देखना पड़ेगा। इज इट राइट? सर तो खाली फिर हम लोग लिख के ले ले, फिर जब आप मैंने वही आउटपुट बोला है, आप सिखाओगे तो लिखने हम को लोग ही उसको बोला वो हुआ है। करेंगे। आपको बोला लाइन पेज पे ओके सर, लिखो, ओके। और आउटपुट जब आएगा तभी आप लोग ब्लैंक पेज पे ड्रॉ। गॉट इट? ओके सर। ओके। फाइन, चलो कंटिन्यू। सो स्टार्ट MySQL सर एडमिन। जर्नल कितने पेजेस का लेने का? 200 या 100? आपको जितना उसमें दिया हुआ है उतना पेज कंप्लीट होता है कि देखो, आपका हैंडराइटिंग के ऊपर डिपेंड है। मेरे ख्याल से 100 पेज का बहुत काफी हो जाए, फिर भी आप लोग देखो, ठीक है? ओके ज्यादा सर। अगर है तो 200 पेज लो, क्योंकि कोई कोई बाद में पेजेस ज्वाइन करता है, उसके वजह 200 पेज का, अगर आपको ज्यादा बड़ा हैंडराइटिंग है। चलो, नाउ 8 मिनट्स आर रिमेन, आई वांट टू कंप्लीट दैट कमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज करता हूँ TYBCom को, क्योंकि वहां पे एक डेटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ TYBCom चेंज, ओके। और उसी के अंदर कमांड लिखता हूँ क्रिएट टेबल। नाउ सी दैट कमांड, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है ई स्टूडेंट, ओके। देन प्रेस एंटर की, ब्रैकेट ओपन, एंटर की। आफ्टर दैट what you have to use, student register number, that is field name। देखो मैंने सिंपल ब्रैकेट नीचे जानबूझ के लिखा है ताकि आपको पता चले कि ब्रैकेट ओपन करके बाद में कमांड कंप्लीट नहीं हुआ है। सो नाउ ST_RN, that is the field name they are given, student roll number। फिर यूनिक मतलब क्या हुआ? प्राइमरी की और इंटीजर। सो आई राइट दैट इंटीजर, स्मॉल int भी लिख सकते हो। देन आफ्टर दैट स्पेस देके व्हाट इज देयर? यूनिक मतलब प्राइमरी की, ठीक है। देन कॉमा, फर्स्ट फील्ड नेम हो गया, सेकेंड फील्ड नेम, कॉमा होने के बाद नीचे आ रहा मतलब सेकेंड फील्ड नेम। स्टूडेंट नेम, उसके अंदर कैरेक्टर बोला है, varchar लिख सकते हो, कैर लिख सकते हो। आई राइट दैट varchar, varchar VARCHAR इन द ब्रैकेट 25 उसका विड्थ दिया हुआ ब्रैकेट में, सिंपल ब्रैकेट में 25। और नॉट एम्प्टी बोला हुआ है। नॉट एम्प्टी मतलब नॉट नल, वी कैन नॉट कीप द ब्लैंक वैल्यू, कॉमा, एंटर, ठीक है। उसके बाद एड्रेस ADDR बताया हुआ, उसका varchar 35। varchar आप लोग नोट डाउन करते रहना चाहिए, मैं बोलता रहा हूँ, आप लोग आप लिख नहीं रहोगे तो आपको परेशानी होगी। क्रिएट टेबल स्टूडेंट ब्रैकेट STRN INT प्राइमरी की हो गया, नेम हो या varchar 25 नॉट नल मतलब नॉट एम्प्टी। देन एड्रेस varchar हो गया, उसका फिक्स साइज उन्होंने दिया है 35, ठीक है, कॉमा, एंटर। उसके बाद उन्होंने दिया है एज, क्या दिया है? एज विड्थ टू न्यूमेरिक नॉट नेगेटिव, तो हम लोग ले रहे हैं एज, ओके। विड्थ है आपका, एज का इंटीजर है, न्यूमेरिक बताया तो इंटीजर, स्मॉल INT भी लिख सकते हो, ओके। INT लिख रहा हूं मैं इन द ब्रैकेट, उसका साइज INT विड्थ का साइज दिया है 2, INT इन द ब्रैकेट 2। और आपका नो नेगेटिव मतलब अनसाइंड, ठीक है, अनसाइंड, कॉमा, एंटर।
उसके बाद आपको दिया है स्ट्रीम, STRM स्ट्रीम। स्ट्रीम को क्या दिया है, स्ट्रीम को वैल्यू बीकॉम दिया हुआ है, मतलब वेरिएबल विड्थ पाई दिया है, नॉट एम्प्टी दिया है। तो आपको पहले varchar इन द ब्रैकेट 5, फिर डिफॉल्ट बाद में डालते हैं, पहले नॉट, ठीक है, डिफॉल्ट डाल देते हैं, डिफॉल्ट इन द डबल सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में बीकॉम, डिफॉल्ट बीकॉम लिखा, और नॉट नल मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कॉमा एंटर। फिर उन्होंने दिया है फीस पेड, तो हम लोग लिख रहे हैं f_pd। उसके बाद फीस पेड का क्या दिया है, 9 डिजिट एंड 2 डेसिमल, मतलब 11 पॉइंट हो गए। तो डेसिमल इन द ब्रैकेट 9,2, ठीक है, अगेन कॉमा, लास्ट वन SMS, और वो भी दिया है बुलिन, SMS बुलिन दिया है ना, रिपोर्टिंग टाइम SMS बुलिन टाइम, हम लोग बुलिन ट्रू और फॉल्स बुलिन हो ले रहे हैं। अभी कॉमा देने की जरूरत नहीं है, प्रेस एंटर, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। देखो कमांड हो गए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन, strnn int प्राइमरी की, s नेम varchar 25 नॉट नल, कॉमा addr varchar 35, कॉमा age int2 unsigned, कॉमा strm varchar 5 default bcom not null, कॉमा fdpd decimal 9,2, कॉमा एंड SMS boolean, देन लास्ट में ब्रैकेट बंद जो टेबल का ऊपर ओपन किया था, एंड देन सेमीकोलन, देन प्रेस एंटर की। क्वेरी ओके, इसका मतलब कमांड एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। और देखने के लिए कमांड है शो टेबल्स, एंटर। देखो TY बीकॉम में ई स्टूडेंट का एक टेबल बन गया, ओके। और उसका स्ट्रक्चर वापिस देखना है तो डिस्क्राइब या DESC, क्या नाम है आपका, डिस्क्राइब टेबल कौन सा है नाम, ई स्टूडेंट, सॉरी सेमीकोलन नहीं, देखो DESC ई स्टूडेंट सेमीकोलन, तो आपका पूरा टेबल का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। गॉट इट? यस yes. ओके, पूरा स्ट्रक्चर का टेबल दिखा दिया। उसमें प्राइमरी की किसको दिया हुआ है, नाम क्या है, varchar टाइप वगैरह बताया, इंटीजर डेटा टाइप बताया, SMS को बुलिंग में उसने टीनी int ले लिया, नल वैल्यूज किस किस का दिया है, यस नो करके बताया, और ऊपर से डिफॉल्ट वैल्यू बताया बीकॉम। दैट इज ऑल थिंग क्लियर? यस स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, आपने कमांड लिख लिया? लिखा क्या कमांड आप लोगों ने? कमांड लिखा क्या आप लोगों ने? लिखा सर, लिखा। ये देखो, ये कमांड आपका, ये कमांड है, आप प्रिंट स्क्रीन करके ये भी रख सकते हो अभी चाहिए। ओके, जो उन्होंने पूछा था वो मैंने क्वेरी में डाला। दिस इज वे, अगर 2 टेबल आते हैं या कभी कभी एक टेबल को भी 8 मार्क देते, ये कमांड इतना सा लिखने का आपको 8 मार्क, खाली यही लिखना होता है, बाकी कुछ भी लिखना नहीं। अंडरस्टूड? ये खाली ये देखो, ये इतना क्रिएट टेबल इच स्टूडेंट ऐसा करके आपको लिखना है, उसका 8 मार्क, कभी कभी 2 टेबल देते हैं 4 मार्क। गॉट इट? यस स्टूडेंट? ओके, तो लास्ट मिनट है, अभी किसी को क्वेरी है तो पूछ सकते। एंड डोंट बिकम ओवर स्मार्ट, बीकॉम के स्टूडेंट्स है ना ज्यादा बहुत सारे चीजें ओवर स्मार्ट, आप पढ़ाई नहीं करते हो, इधर उधर ध्यान देते हो और फिर वापिस पूछते बैठते हो। बी स्टडी, आपको लगता होगा देखो अभी एग्जाम का डेट 12 का री एग्जाम का भी आ गया, तो इसका मतलब ऐसे मत सोचो कि जो जिनका एग्जाम गया है कैंसल नहीं होगा TY, मे बी they whatever tricks are there they use it Mumbai University and they take the exam, okay they will। तो आप लोग प्रिपेयर रहो, इसलिए पढ़ाई करने के लिए आप लोग क्या करते हो, और स्मार्ट में आप लोग पढ़ाई छोड़ देते हो और फिर बाद में मुझे ये नहीं समझ में आता, वो नहीं आता है। आई जस्ट गो फ्लो वाइज, मैं वापिस रिपीट करने वाला नहीं हूँ। क्लियर? यस स्टूडेंट? हेलो? Yes, sir. या सो प्रेजेंट रहो प्रॉपरली ऑन टाइम। आपका किसी का अटेंडेंस नहीं लगा होगा तो बताओ। ये जितने भी स्टूडेंट ने आज अटेंडेंस दिया वो पहले लेक्चर में सब प्रेजेंट है क्या? हाँ सर, प्रेजेंट है ना? हाँ सर, मैं थी। हाँ Yes, हाँ sir.
ओके मैं भी हूँ। हाँ सर ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम ऐसे ही मैं प्रेजेंट ही पहले लूंगा क्योंकि मुझे अटेंडेंस चाहिए। मैं TY BSc का अटेंडेंस रेगुलरली ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े ही स्टूडेंट्स होते हैं, 16 स्टूडेंट्स है, अब ज्यादा है, तो आप लोग फटाफट अपना रोल नंबर बता देने का। इज इट क्लियर? लास्ट ईयर का ही नंबर, नो इश्यू, मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर का नंबर सब लोग नाम क्या